या गुड इवनिंग, नमस्ते और जय यीशु। महामहिम आर्चबिशप जॉन बारवा, ऑक्सिलरी बिशप ऑल्विन डिसिल्वा, सम्माननीय वाइस प्रोविंशियल फादर आइडल, माननीय पल्ली पुरोहित फादर थियोडोर, समस्त फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स और उपस्थित क्रिश्चियन में मेरे प्यारे मित्रों, सम्माननीय वाइस प्रोविंशियल फादर आइडल, पल्ली पुरोहित फादर थियोडोर तथा OLPS पैरिस की ओर से मैं आप सबों को नमन तथा अभिनंदन करती हूँ और विशेष रूप से मुंबई के ऑक्सिलरी बिशप ऑल्विन डिसिल्वा तथा ओडिशा कटक भुवनेश्वर के आर्चबिशप जॉन बारवा को हार्दिक सुस्वागतम। आज हम यहाँ OLPS पैरिस सेवादान में यीशु पिता को धन्यवाद देते हुए इस क्रिस्तीय समारोह में ईश्वरीय आशीष कृपा वरदानों को धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। Yeah.
Kindly be seated for a few moments. The Archbishop John Barua, dear Bishop Alden De Silva, my dear fathers, sisters, my dear brothers and sisters. It gives me tremendous joy this evening to extend a most heartfelt welcome to Archbishop John Barua, Archbishop of Cuttack, Bhubaneswar. Welcome into our midst, and thank you for accepting our request to celebrate this Eucharist of Thanksgiving for our migrant community here at OLPS Parish, Chembur. Your very presence here is a blessing for all of us. In a particular way, our migrant community here, and to the work of the Redemptorists through our organization called Pahunj, which is the flagship of our mission to people on the move, to migrant people, especially in here, Archdiocese of Mumbai, neighboring diocese of Vasai, the Archdiocese of Goa, Diocese of Mangalore, Udupi, Harvard, Belgaum. Through Pahunj, Redemptorists seek to not only offer pastoral care, but to offer in the spirit of Fratelli Tutti, the encyclical of Pope Francis, to be messengers of peace, of goodwill, of building bridges, of breaking down walls, of bringing all people into the loving embrace of a Father who cares, of His Son Jesus, through whom the Father saves, and the Spirit at work in our lives. Thank you, Archbishop, for being here today with us. I also wish to thank Bishop Alden De Silva. Thank you, Bishop, for being present with us, for your role in the Western Bishops of Maharashtra, the Western Region Bishops' Conference, your role as animator of Migrant Mission, your role as animator here in the Archdiocese of Mumbai, and for representing His Eminence, Archbishop and Cardinal Oswald Gracious. But thank you for all that you are doing in your own person for bringing together people on the move, for involving them into the mainstream, for offering them the good news, here especially in our Archdiocese of Mumbai. Bishop Alden, thank you very much for being present with us this evening. I also wish to thank all the fathers here who have come to be with us, present with us Redemptorists and with our OLPH Parish migrant community. A special word of thanks to religious sisters who are present here, who have been supporting us, who have been helping us, and who join us as one family to proclaim the kingdom of God to our people on the move, our migrant people, in a special way, our people from Chota Nagpur, who are now here in our city, our Archdiocese of Mumbai. A very special word of welcome, especially to the healthcare workers, to doctors, nurses, who have been part and parcel of this one mission of Pahunj, to bring the kingdom of God to people most abandoned, people in need, especially during the last 9 to 10 months of COVID-19 and the affliction that our people, our migrant people, have had to endure. The amount of work you have done silently, without much recognition, your faces never will hit the headlines, but that's okay. Our great God sees all, and our great God blesses you all. Thank you for your presence with us this evening. A very special word of thanks and welcome to our working youth of OLPH Parish. In the very first months of COVID-19, you, in a way, were the arms and outreach, the Pahunj for OLPH Parish, in all our activities as we reached out, through your help, to so many families who were struggling in the months, it was the end of March, all April,
May and into June, in the varieties of ways in which we were able to offer God's love through different ways of assistance. You enabled that to happen, sacrificing much, even putting your own health and lives at risk. And so, in this Eucharist, we thank the Lord for you and your families, and for the efforts you took that God's love be manifest in our community. Finally, a word of welcome to our own migrant community here, who are part and parcel of our celebration of God's love amongst us. May this Eucharist be for all of us a reminder that our God is present. Is present in the midst of pain, in the midst of suffering, as love, as grace, as strength, but above all, as blessing. What a lovely words! इतने सुंदर वचन हम लोग को सुनाए। तो आइए हम इस पवित्र संध्या की बेला में, सांझ के बेला में ईश्वर के धन्यवाद करना। बहुत सारे कारण हैं धन्यवाद देने के लिए, हम जानते हैं। और आप लोगों के साथ मिलकर मैं धन्यवाद देने आया। आइए तब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम प्रभु आप लोगों के साथ रेवरेंड फादर आइडल, सभी पुरोहित भाइयों, धर्म पहले मेरे अति प्रिय बहन भाइयों, पहुंच के सदस्यों, आज हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं आप सबों के लिए। और मैं विशेष रूप से आया आप लोगों के साथ मिलकर धन्यवाद देने के लिए आप लोगों को, क्योंकि हम लोग खोए हुए भेड़ों के समान हो रहे थे, भटक रहे थे, दिशा नहीं और डायरेक्शन नहीं और जाने के लिए तकलीफ। और इसमें आप ही लोग हम लोगों को पहुंचाए, आप ही लोग हम लोगों को वापस लाए। क्यों हमें बनाया जात रही, हमें हेजाए जात रही, मगर पहुंच और विश्व के डायरेक्टर आप वहाँ धर्म प्रदेश के आर्चबिशप महामहिम कार्डिनल और उनके जितने भी बिशप ऑक्सिलरी हैं और ये धर्म समाज के से साथ आते हैं, रेडेम्पटोरिस्ट पुरोहित निर्मला गोरेटी और उनके टीम मेंबर और मैं डॉक्टर लोग हैं यहाँ पर, सबने हमारे लिए सब कुछ किया है, सब कुछ किए हैं आप लोग। आइए तब धन्यवाद देंगे प्रभु को, क्योंकि वही प्रभु का प्यार हम लोगों को मिला, आप लोगों को
और हमने पाया है, अब जीवित है और जीते जागते रहेंगे, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं। और जब तक आप लोग हमारे साथ हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई भी ताकत हमें वापस नहीं ले सकता, पीछे नहीं ले सकेगा, क्योंकि रोमियों के नाम में संत पौलुस लिखते हैं 8 अध्याय में, ये प्रेम प्रभु के साथ है तो कोई भी अलग नहीं कर सकता है। Nothing can separate us, and we believe once you are with us, आप लोग हमारे साथ हैं, कौन हमें अलग कर सकेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मोर दुलार कुमार, अब इस सच्चे में धन्यवाद हृदय से बोलकर सच्चे धन्यवाद हृदय से प्रभु को धन्यवाद देंगे, आशीर्वाद मांगेंगे कि हम लोग ऐसे ही जीते जागते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रभु के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे, प्रभु की कृपा से भरपूर होते जाएंगे। आइए तब अपने को तैयार करें, पाप को दुर्बलताओं के लिए क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अंतःकरण से और अपना कर्तव्य पूरा करने से वाद किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं अपने कर्तव्य से सब दुखों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबको पर दया करें, हमारे पाप और दुर्बलताओं को क्षमा दे और हमें स्वर्गीय शांति प्रदान करे। आमीन। Daya
हमारी सहायता कर, जिससे हम तुझको सारे हृदय से प्यार करें और जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करने हमें चाहता है, वैसे ही सभी मनुष्यों को अपने समझ प्यार करें। विशेष रूप से आज हमने हमारे यहाँ के बिशप बन के, पुरोहित बन के और तो धर्म भाई बन के, और हमारे भाई बहन बन के लगे सगड़ों दिल से रावरे के धन्यवाद देगा। स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम सबको आशीर्वाद से परिपूर्ण कर कि हम प्रत्येक जन प्रेम के बंधन से बंधे जाए और वही सच्चा प्रेम का जीवन बिताते हुए सबों के लिए एक साक्षी, इसके जीवन का साक्षी बन सके। यही हमारी प्रार्थना है हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के द्वारा। वर्ष का चौथा रविवार, पहला पाठ, विधि विवरण ग्रंथ। मैं एक नबी उत्पन्न करूंगा और उसके मुख में अपने शब्द डालूंगा। मूसा ने लोगों से कहा, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। तुम लोग उसकी बात सुनो। जब तुम पर्वत होरेब के सामने एकत्र थे, तुमने अपने प्रभु ईश्वर से यही मांगा था। तुम लोगों ने कहा था, अपने प्रभु ईश्वर की वाणी हमें फिर सुनाई नहीं पड़े और हम फिर वो भयानक अग्नि नहीं देखे, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब प्रभु ने
मुझसे यह कहा, लोगों का कहना ठीक ही है, मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूंगा। मैं अपने सर उसके मुख में डालूंगा और उसे जो जो आदेश दूंगा वह वही तुम्हें बताएगा। वह मेरे नाम पर जो बातें कहेगा, यदि कोई उसकी उन बातों को नहीं सुनेगा तो मैं स्वयं उस मनुष्य से उसका लेखा लूंगा। यदि कोई नबी मेरे नाम पर ऐसी बात कहने का साहस करेगा जिसके लिए मैंने उसे आदेश नहीं दिया, या वह अन्य देवताओं के नाम पर बोलेगा तो वह मर जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। जो कुमारी है वह प्रभु की बातों की चिंता करती है और वो पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई चिंता ना हो। जो अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करता है, वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करता है, वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। उसमें परस्पर विरोधी भावों का संघर्ष है। जिसका पति नहीं रह गया या जो कुमारी है वे प्रभु की बातों की चिंता करती है। वे तन और मन से पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करती है और अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है। यह मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं चाहता। मैं तो आप लोगों के सामने प्रभु की अनन्य भक्ति का आदर्श रख रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hallelujah.
और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा दे रहे थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यीशु ने यह कहकर उससे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब जो उस मनुष्य को झिझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, ये तो नए प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं, वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गया। यीशु ख्रिस्त का पुण्य सुसमाचार। हमारे अति प्रिय बिशप स्वामी आदमी रेवरेंड फादर एडन और सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, गौरेती बहन, निर्मला और सभी बहन, अब हमको जय मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ ईश्वर का प्रेम का समारोह मनाते हुए ईश्वर के रात में आ, क्योंकि आप लोगों को देख रेख करने वाले पुरोहित भाइयों, विश्व स्वामी रिप्रेजेंटेटिव हैं और धन बहने, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सेवा हमारे भाई बहनों का पहुंचा। नहीं तो क्या होगा, ऊपर वाला जाने। क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, कोनो भी शहर जाऊँ, मैं तभी थोड़ा ढूंढता हूँ कहाँ है लोग जो दुनिया में लोग कहते हैं कि लॉस्ट लीस्ट एंड लास्ट, ये लोग कहाँ हैं? तो उनको मैं ढूंढता हूँ और उनके लिए मैं उनके साथ मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे कुछ में आ जब मैं जलंधर गया ध्यान प्रार्थना करने के लिए फादर लोगों को, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग, हमारे लोग कहाँ काम कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था उनको, अरे तुम लोग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ छोड़ के इधर आ गया, कल नहीं मिला रे, कल नहीं मिला। वो लोगों का जवाब मालूम है, बेटे लगे क्यों जीता, पेट के लिए ही तो, पेट के लिए ही हम गांव घर छोड़कर आ गए इतने दूर तक।
और जो कुछ भी इन दुनिया में हो रहा है होता है पेट के लिए ही होता है, पेट के लिए ही होता है, जीने खाने के लिए ही होता है। और वही हो रहा है हम लोगों के साथ ही, हम लोगों के साथ ही। लेकिन एक बात है, हम लोग ध्यान में रखेंगे, पेट के साथ आत्मा को भी हम लोग खातिरदारी करेंगे, है ना? बुझाता कि नहीं बुझाता? अरे बुझाता कि नहीं? बेटा हाँ बुझा नाम कृष्णा लगे हो गया ठीक है, बहुत धन्यवाद। इसीलिए पेट के साथ हम लोगों को आत्मा का भी खातिरदारी करना। आत्मा केहू जो गए के रखे गए के खबर कोनो के विवेक देख रखे कोनो के, और हम लोगों को मदद करने के लिए है ना, वाइस प्रोविंशियल है, फादर एंड्रू है, बिशप स्वामी है, कार्डिनल है। मैं जब लिखा हमारे महामहिम कार्डिनल को कि मैं आ रहा हूँ बॉम्बे, आ रहा हूँ गोवा, आ रहा हूँ वासाई, सबके सब मेरे को जवाब दिए, आर्च बिशप आइए, वेलकम, आप हमारे साथ रहिए, आइए घर आपका है। बाप रे, मुझे इसे लग रहा कि मदद है कि नहीं क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पुरोहित भाई लोग और हमारे बिशप स्वामीगण हमको वेलकम किए, आओ ये सब आपका है, यहाँ आप, ये आपका घर है, यहाँ भी यहाँ रहिए। और जितने दिन आप ईसा पूजा करने और चाहते हैं, क्यों नहीं लगेगा मुझे क्या कैसा न कैसा, ऐसे ही लगेगा, कैसा भी कैसा लगता है। ईश्वर को धन्यवाद, आप लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये गौरव और आप लोग फादर एंड्रू और आप लोग वाइस प्रोविंशियल और ये सब जी, जब यही लोग वापस जा रहे थे, हमको अच्छी तरह मालूम है कैसे कैसे होकर गए, किस हालत में गए। कई बार हमको तो मैं भी मदद किया, भुवनेश्वर जब पहुंच गए, गौरव की बहन बोली ऐसे ऐसे भेज रहा हूँ, तो ये सब हुआ है। ये सब होने के बावजूद हम अभी ईश्वर को धन्यवाद देने की लायक बन रहे हैं, योग्य हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं, और इससे बढ़कर प्रभु का प्यार हमारे लिए क्या हो सकता है। 40 साल तक प्रभु इस्राएल लोगों को संभाला, 40 साल तक मरुभूमि में उनको खिलाया, पहाड़ पर चट्टानों से पानी उनको पिलाया। वही प्रभु हम लोगों को आज भी संभाल रहा है, इसको हमको महसूस करना है। इसका मतलब जब हम महसूस करेंगे, हमरे जेखन चीना के नहीं बेड़ा नहीं खोएंगे, कभी नहीं खोएंगे। और वही संत पौलुस जो लिखते हैं, कोई भी हालत में, कोई भी ताकत, कोई भी पावर हमको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा कि हमारा आवाज हो, कि हमारी आवाज हो, हर दिन हमारी आवाज हो, कि भूख हो या प्यास हो, महामारी हो, या कुछ भी तकलीफ हो, ये तकलीफ हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं करेगा, नहीं करेगा पानी और नहीं पलक। महामारी अलग अलग कहते लग कि नहीं करना। उड़ीसा में, मेरे उड़ीसा राज्य में 105 जन को भयंकर 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 रोग से मार डाले, भयंकर टुकड़ा 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 कर दिए। पूछते हुए कि क्या रहे, उड़िया में पूछे, कौन तू धर्म छाड़ी हो, क्या तुम धर्म छोड़ेगा, यीशु को छोड़ेगा? वो बोले कभी नहीं, जो करना है तुम लोग कर डालो, टुकड़ा टुकड़ा कर दो, लेकिन हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा विश्वास है, और आप लोग अभी वही विश्वास बहुत जिंदा रखना, जीवित रखना चाहते हैं। प्रभु को धन्यवाद और रखेंगे। आज इस पवित्र मिसा पूजा में हम लोग यही घोषणा करेंगे कि हम प्रभु के हैं और प्रभु के ही रहेंगे। हम उड़िया में गाते हैं, ये जगत तो जानना में यीशु को दो, ये दुनिया जाने कि हम यीशु के हैं, लेकिन
आंधाधुंध से नहीं, हमारे बातचीत से, हमारे व्यवहार से, हमारे चल चलन से, हमारे व्यवहार से, बातचीत से, सब कुछ से जाने, दुनिया जाने कि हम यीशु के हैं और यीशु के रहेंगे, क्योंकि सुसमाचार में हम लोग सुने यीशु सर्वशक्तिमान है। उनके आवाज से शैतान हड़बड़ा के भागा, नहीं भागा। सुसमाचार में सुना तो हटपटाते भागा करे, तो शैतान फिर सा छटपटाते भागा। वो शैतान है ना, प्रभु की आवाज ले निकल जा, छटपटाते भागा। यही होगा जब हम प्रभु के साथ हैं, कोई ताकत हमको हिला नहीं सकेगा, कोई भी ताकत हमको हिला नहीं सकेगा, क्योंकि प्रभु सर्वशक्तिमान है। हमारे ईश्वर अचरज काम करने वाला ईश्वर है। हमारे ईश्वर शैतान को भगाने वाला है ईश्वर है। हमारे ईश्वर प्रेम देने वाला ईश्वर है। हमारे ईश्वर सब कुछ में सहारा देने वाला, संभालने वाला ईश्वर है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि शैतान थोड़ा दुनिया को अपने कब्जा कर ले रहा है। लोग आलस घसीटा भरते जा रहे हैं दुनिया को। शैतान धीरे धीरे कब्जा में ले जा रहा है दुनिया को, धरती को। नहीं होगा। हम लोग आज प्रभु के आशीर्वाद से कहेंगे एक आवाज से कि नहीं होगा रे शैतान, नहीं होगा। हम प्रभु के हैं, प्रभु में ही रहेंगे। होगा कि नहीं होगा? मुझे मैं बेटा नहीं, मैं बेटा कहा गलती में काले होगा कि नहीं होगा? काम तो जरूर करेंगे, पेट को संभालेंगे, परिवार को, बाल बच्चों को संभालेंगे, विश्वास को जीते जगते रखेंगे। होगा कि नहीं होगा? अरे महाराज कहा महाराज होगी कि नहीं होगी? होगी तो देखला है महाराज मन कर आवाज सुना और खड़बड़ी कहा होगा कि नहीं होगा? देखो तब मेरा नाम मैं आता हूँ और आऊँगा ही आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोगों के साथ प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, आप लोगों के साथ रहने के लिए। मैं उड़ीसा के बारे में कह रहा था, वहाँ पर भी दलित और आदिवासी केवल क्रिस्तान है, दलित और आदिवासी केवल क्रिस्तान है। लेकिन एक जन भी इतना होने के बावजूद घर जला दिए, इतने लोगों को मार दिए, टुकड़ा टुकड़ा काट दिए, पूछते हुए क्या तुम धर्म छोड़ोगे? नहीं तो देखो, एक जन को मैं रोम में भी कह रहा था सिनोड में, एक जन को बाइबल, उनके बैग में बाइबल मिला, तो बोले पूछे तुम क्रिस्तान है बेटा? हाँ मैं क्रिस्तान हूँ। तो उसको लिए बाहर, बस में था, बाहर निकाले घसीट के बाद से, फिर एक गड्ढा, वो गड्ढे में लिए और उसको मिट्टी डाले, जिंदा मिट्टी डालते गए। छोड़ेगा कि नहीं क्रिस्तान धर्म? यीशु को छोड़ेगा कि नहीं? वो बोला कभी नहीं छोड़ेगा। अंत में जब मिट्टी इतना दूर तक आ गया, इतना दूर तक डाल दिए, तो बाद में एक बड़ा सा पत्थर उसके सामने रखे और पूछे क्या यीशु को तुम छोड़ेगा कि नहीं? तो देख के पत्थर तेरा मुंडी में। और क्या वो थोड़ा सा ऊपर आके बंद करके ऊपर उठाया, ऐसा देखा और आवाज के साथ बोला मैं कभी नहीं, यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगा। और क्या हुआ? उसके मुंडी में ये सब होते हुए भी हम लोग प्रभु को नहीं छोड़े हैं, क्योंकि प्रभु को हम लोग पहचानते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु कौन है, शैतान भी पहचानता है, और हम लोग उनके सृष्टि नहीं पहचानेंगे। धिक्कार हम लोगों को, धिक्कार हम लोगों को, यदि हम लोग नहीं पहचानते हैं तो। इतने में हम लोगों को संभाल रहे हैं, इतने महामारी आया है, इतने संभाल रहे हैं, हम लोग को खिला पिला रहे हैं, हम लोग को फादर सिस्टर लोग मदद कर रहे हैं, इतने में भी हम लोग वही प्रभु का प्रेम को नहीं पहचान रहे, धिक्कार होगा हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, मेरे दुलारो, आइए पवित्र मिसा पूजा में एकजुट होकर, एक मन होकर हम प्रार्थना करेंगे कि हमें नहीं बेड़ा गाना में गाए ना एंट्रांस ना हे गड़े ना बिना ना
संभाल के रखना। ये फादर सिस्टर लोग और एक ही लोग आओ, सबको संभाल के मेहनत करना है, एकजुट रखने के लिए उनसे ही रहेंगे, क्योंकि ये सब प्रभु के काम है, प्रभु की योजना है, उनकी योजना नहीं है, प्रभु की ही योजना है। आइए तब पवित्र मिसा पूजा में अच्छी तरह भाग लेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रभु के साथ साथ आप लोगों को सारे दिल से धन्यवाद देंगे। मैं पूरे आदिवासी समाज, जितने भी छोटा नागपुर तरफ से जितने भी आदिवासी यहाँ पर कहाँ पर नहीं है, सबों की ओर से आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और मैं यही आज इनके साथ मिलकर यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और करेंगे ही, क्योंकि हमारे लिए जिनका कोई नहीं है उनका प्रभु है, हमारा एक विश्वास है। जिनका कोई नहीं धरती में जहाँ नहीं गई असोती कभी तो ऊपर वाला है हमारे लिए, और आप लोग हमारे लिए प्रभु का आशीर्वाद ला रहे हैं। प्रभु आप लोगों को भी आशीर्वाद दे, सबों को आशीर्वाद दे। और माँ मरियम जो हमारे साथ हमेशा रहती है, हमारे दुख दर्द में, कान्हा नगर में भी बिना बताए बिना पूछे सब कुछ करवा दी, वो भी हमारे लिए करवाएंगे ही। लेकिन जो विश्वास के साथ मांगे, जो विश्वास के साथ रहे, विश्वास में कभी डगमगाना मत, विश्वास में कभी डगमगाना मत, क्योंकि प्रभु हमारा है और हम प्रभु के हैं। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर Yeah.
बड़े प्यार से हम लोग कहें, मांगो मिलेगा, ढूंढो आओगे, खटखटाओगे, खटखटाओ दरवाजा तुम्हारे लिए खुला जाएगा। आइए सब ये विश्वास के साथ हम लोगों को मांगेंगे, हमारे निवेदन प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं। विश्वासियों को पवित्र तथा आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। मोमबत्ती। यह मोमबत्ती प्रकाश का प्रतीक है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। जिस प्रकार यीशु खुद को क्रूस पर लादकर हमें पापों से मुक्ति दिलाए, उसी प्रकार हम भी दूसरों की भलाई और अच्छाई के लिए अपने आप को तैयार करें। इसलिए हम यह मोमबत्ती अर्पण करते हैं।
परिवार। परिवार पवित्रता, एकता और प्रेम का प्रतीक है जो हमें पवित्र कलीसिया सिखाती है। इसलिए हम यह परिवार अर्पण करते हैं। मास्क, सैनिटाइजर और साबुन, यह सभी गंदगी और कीटाणु से हमारी रक्षा करता है, खासकर इन कोरोना महामारी में। उसी प्रकार हम यीशु को हमारे जीवन में शामिल करें ताकि पापमय महामारी से हमें मुक्ति मिले। इसलिए हम यह अर्पण करते हैं। आइए हम एक मन एक दिल होकर प्रार्थना करें कि हमारे ईश्वर प्रेमी ईश्वर हमारे भेंट प्रार्थना जितने भी हमारे सोच विचार है हम हैं सब कुछ को ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के नाम के लिए आपके हाथों से अवदान ग्रहण करें। हे प्रभु हम तेरे सेवक सेविकाएं इस वेदिका अपनी भेंट अर्पित कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना हम जो है सब कुछ तो तेरा ही दान है, सब कुछ तुझे समर्पण कर रहे हैं। प्रभु ये सब ग्रहण कर हमें आशीर्वाद से परिपूर्ण कर हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
धन्यवाद पापी मनुष्य का पाप मिटा दिए और हमें पुनः वही संबंध वापस लाए हैं। अपने दुखों से हमारे पाप मिटाकर अपने पुनरुत्थान से हमें आनंद जीवन रखने की प्रवेश की कृपा दिए हैं और अपने पेंटेकोस्ट पुनरुत्थान स्वर्गलोक के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए हैं। इसलिए हम समस्त जनों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक वर्ष गाते हैं। हे परम पिता आपके वास्ते पवित्र है, सारी पवित्रता का रूप है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि अवधार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और सभाओं के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एक प्रभु हमारे संत पिता साक्षात
हमारे धर्माध्यक्ष और सभी आपको के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलसिया की शुद्धि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बनाते। हे प्रभु, हमारे उन भाइयों और बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य मरियम, उनके प्रिय पति योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेवकियां बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके। तेरे प्रभु, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। बड़े प्रेम के साथ ये धन्यवादी की समय भाग लेने आए हैं। प्रभु को धन्यवाद देने, प्रभु से आराधना करने तो चाहिए। चलिए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ बड़े प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, और एक गीत को भी जो महान प्रार्थना की गीत है, एक ही आवाज में सब कुछ जोरों से गाएंगे। पिता जो स्वर्गवासी पिता
हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, पाप और पाप की परीक्षा से हमें सुरक्षित रख और पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण करते हुए हमें बल दे कि हम उस दिन की अपेक्षा में रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। वही शांति लेकर मनुष्य जीवन जिए पाप को छोड़कर और यही आशा की कि हम मनुष्य वही स्वर्गीय प्रेम और शांति की जीवन बिताए जो शांति प्रेम एकता तेरे राज में है जहाँ तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। यही तो हमारे मुक्तिदाता यीशु जिस महान संस्कार में उपस्थित होते हुए हमारे साथ रहने आ रहे हैं, महत्वपूर्ण ईश्वरीय घटना है। धन्य है हम जो प्रभु के स्त्री भोज में बुलाए जाते हैं। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। ख्रिस्त का शरीर सिर्फ कैथोलिक लोगों के लिए है, अन्य धर्म के लोगों से विनती है अपने जगह पर बैठे रहें और कृपा के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। हमारे कलीग थे, हम जो कमिटेड वर्कर है सुजन संतोष को बुलाते हैं। बिशप स्वामी ऑलिन के बारे में आपका तो के बारे में 2 शब्द बोलेंगे, फिर बिशप स्वामी ऑलिन हमको कुछ बताएंगे। अपना जो प्रोग्राम है इधर हेल्थ प्रोग्राम है आज डायसिस में, उसके बारे में आपको बताएं।
करते हैं। कोविड-19 की महामारी को देखकर आदरणीय बिशप ने फैसला किया है कि प्रवासियों के लिए एक स्वास्थ्य डेस्क या हेल्थ डेस्क की स्थापना हो और सभी प्रवासियों को स्वास्थ्य में कभी परेशानी ना लेना पड़े। इस प्रयास में रिटेंडर्स फादर्स बिशप का सहयोग करना चाहते हैं और आज हम OFPS में बिशप ऑल्ड्रिन डिसिल्वा, ऑक्सिलरी बिशप ऑफ आर्चडायोसीस ऑफ बॉम्बे का हार्दिक स्वागत करते हैं। बिशप, आपसे अनुरोध है कि आप उनसे Thank you, Susan. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बिशप जॉन बर्वा का हमारे बीच स्वागत करता हूँ। बिशप जॉन, आपके आने से यहाँ उपस्थित हर एक विस्थापित को बहुत खुशी हुई है। मैं भी आपको कहना चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। अपने परम पिता फ्रांसिस के जीवन में, खास करके उनके हृदय में आप लोगों के प्रति विशेष स्थान है। कोरोना महामारी के दौरान आप लोगों को बहुत सामना करना पड़ा। समाज सेवा संस्था के सहायता से स्वास्थ्य सहायता का आयोजन किया हुआ है, जिसके बारे में फादर और सिस्टर्स आपको अधिक जानकारी देंगे। हमारे कार्य और कलीसिया का सहयोग आपके साथ हमेशा है। ईश्वर आप और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हमेशा दुआ दे। यह मेरी आप सभी के लिए प्रार्थना। धन्यवाद। To go for another mass sign for the leave. Thank you. Because these people, yesterday evening, they wrote small paper and gave me. चर्च में हर एक संस्था करीब श्रमिकों को पंजीकरण करना चाहिए एंड दे वांट दैट नेम्स टू बी रजिस्टर्ड। एक हेल्पलाइन होना चाहिए, जरूरी है। सरकारी कागजात बनाने में जो जैसे आधार, पैन कार्ड, ये सब की जरूरत है, दस्तावेजी के लिए उसको मदद मिले, हमको मदद मिले। हमारे चेंबूर चर्च में एक हिंदी मिसा के लिए फादर जरूरी है। जब भी मिसा होता है उसके लिए बाहर से फादर बुलाया जाता है। प्रवासी मजदूर जब गांव से निकल रहे हैं या काम ढूंढने के लिए शहरों में आते हैं, तब फादर, सिस्टर या संस्था का नाम देना चाहिए, जिसके द्वारा कि ताकि वे मजदूर इन लोगों को संपर्क कर सकते हैं। सो दे वांट दिस काइंड ऑफ सम प्रीस्ट हियर इन दिस लोकल प्लेस। तो आई रिक्वेस्ट, हमारे अनुरोध है उनके साथ में कि जरूर एक ही बात है भाई, मैं चाहता हूँ कि हमारे जहाँ से आते हैं उधर भी पंजीकरण करेंगे और इधर भी आप लोग छुप के मत रहना, क्योंकि मैं भी उड़ीसा में बहुत कोशिश किया कि जब आप लोग कोई भी गांव जा रहे हैं, कोई भी शहर जा रहे हैं, wherever you go, register your name there and register your name here, लेकिन छुप के चले आते हैं।
हमने कितना मेहनत किया, गाँव में नुक्कड़ तक दिखाया, बहुत सारे मेहनत किया कि तुम लोग जहाँ भी जा नाम लिखवाओ उधर भी इधर भी, लेकिन चुप के रह जाते, वो सब कहीं नहीं हो। तो ये सब होने की संभावना है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ आने के बाद कि फादर all the father Andrew and father and all of them father and Bishop Cardinal और Archbishop बॉम्बे वाले, Archbishop गोवा वाले, Archbishop जब भी बिशप बसाएंगे, ये सब हमको लिखे कि Archbishop आइए, come here, celebrate mass with your people। इतना उत्साही है, हम लोग भी तो उत्साही होना चाहिए ना, केवल भरोसे में देव ऐसा नहीं हो ना हो। हम लोग मर्यादा के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, और हम लोग उसी प्रकार जीवन जीने के लिए कोशिश करेंगे। जो करना है हम लोग भी करेंगे, नाम बाजी करने के लिए हम लोग भी मेहनत करेंगे, और केवल ऊपर से आवे फादर सिस्टर लोग करें वो सोच में हम लोग नहीं रहेंगे। सो थैंक यू सो मच द वे हैप्पी न्यू ईयर। तो हम लोग खड़े हो जाएंगे, अंतिम प्रार्थना के लिए। हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रेमी ईश्वर, आज के सुंदर समारोह के लिए सारे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से हम चैम्बूर पल्ली के हरिचंद के लिए और जितने भी हमको मदद करते हैं सब उनके लिए धन्यवाद देते हुए आपसे उनके लिए निवेदन करते हैं, उनको प्रचुर आशीर्वाद की कृपा से भरपूर कर दें। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आप लोग सिर झुकाते हुए विशेष आशीर्वाद करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को कृपा पूर्वक अपनी आशीष दें और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। वहाँ आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धन के कार्य में अध्यवसायी बने रहने का बल प्रदान करते रहे। ईश्वर आप लोगों के चरण अपनी ओर अग्रसर करें और शांति तथा प्रेम का मार्ग दिखाते रहे। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। और एक बात कि मैं भी कार्डिनल स्वामी तो कार्डिनल को लिखूंगा, आप जो पूछ रहे हैं, लेकिन इतना मैं चाहता हूँ कि सबों की ओर से सबको एकजुट होकर मेहनत करेंगे और सबों को मदद करेंगे। हम लोग फादर लोग हो, सिस्टर लोग हो, डॉक्टर लोग हो, नर्स लोग, जितने भी हमको मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, जरूर हम लोग भी सहायता देंगे, सहयोग करेंगे। मैं भी कार्डिनल जी को हमारे ओर से